वेलकम टू लर्निंग विद कल्पवृक्ष। पीछे के 2 एपिसोड्स में हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर फिनिश किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिकली हमने 2 तरीके देखे जिनसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वन इज योर फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज योर फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच। आज हम एक एक्सरसाइज के कुछ अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी एंड देयर आर अदर क्वेश्चंस अवेलेबल एज वेल जो आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। So let's begin. I am solving exercise 4.3, page number 47. Let's start with the question number 2. The question says, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. The equation being, I will start from this side of the board so that I can use the entire board till there. The question is kx, x minus 2 plus 6 is equals to 0. So, अब ये क्या बोल रहा है आपको कि find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. अब यहाँ पर 2 equal roots होने हैं, राइट? हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने देखा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम ग्रेटर देन 0 बोलते हैं तो हमारे पास आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट? अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 बताते हैं तो नो रियल रूट्स, और अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल्स टू 0 बताते हैं तो 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये बेसिक थंब रूल है हमारा। इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे। सो kx x minus 2 plus 6 is equal to 0, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। नाउ टू इक्वल रूट्स किस केस में होते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac is equals to 0, राइट? सो 2 सिनेरियो हमारे पास पता चल गया। पहले हम क्वेश्चन को एक्सपैंड करते हैं। तो क्वेश्चन एक्सपैंडेड वुड बी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 is equals to 0. नाउ दिस बिकम्स राइट। अब यहाँ पर हम अगर डिफाइन करें तो a की वैल्यू आती है k, b की वैल्यू आती है माइनस 2k एंड c की वैल्यू आती है 6, राइट? नाउ लेट्स राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मेट। माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल्स टू माइनस 2k का स्क्वायर प्लस माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a since a is equals to k, so 2k. So first example हमें क्या पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर 0 है, which means that 4k स्क्वायर minus 24k will be equals to 0, right? अब क्योंकि ये equal to 0 होगा and this number is in the format of 4k square minus 24k, so 4k square is equals to 24k अगर हम कहते हैं तो ये बन जाता है आपका। So how will you calculate the k की value? The k का value becomes 4k square is equals to 24, k square is equals to 6k and k is equals to 6, right? k is equals to 6 आपके पास वैल्यू आ गई है। Now आपका क्वेश्चन आपका क्या था? Your question is find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. You've already found out k, right? Now placing this value of k here and here, you will get the value of x also. Completely depends upon you. If you want to solve the further question, it's very simple. You just have to place it and place करके आप x की value को भी निकाल सकते हो. So if the question was this, I will stop at this and will try to take up the next question. Questions मैं जो solve कर रही हूँ, I am trying to solve it जो आपकी bookish requirement है. But अगर if there is anything that you want to learn more over and above this, please do engage with the video. Share your comments in the comment section and let me know if you would want to go a step further as well. Like this, the question requirement is that कि सिर्फ k की value बता दो. k की value हमारे पास already है. Now, if you want to put this into the equation and take out the value of x as well, you will get that same value as well, right? किसी और दिन हम जब
डिटेल में कोई चैप्टर कर रहे होंगे, then we will cover that. Let's move on to the next question right now. Okay, so if I take up the next question, question number 3, it says, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. Now again, I will just revise the basic concepts जो हमने अपने ज्योमेट्री के पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की बात हो रही है. Now when we come to a rectangular mango groove, what do we say? It is L and it is B, and the area will be equals to L into B. अब हम सपोज कर लेते हैं कि B is equals to X, ठीक है. तो इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth? तो अगर मैंने बोला कि B की वैल्यू X है तो लेंथ की वैल्यू 2x हो जाएगी, राइट. एंड एरिया जो हमारा आइडियली होना चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपका L into B, सो दिस बिकम्स 2x into x. और आपका एरिया कितना बोला है क्वेश्चन में? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. सो 800 is equals to 4x square, and that's it. And the question becomes x square is equals to 200 and x is equals to right. Okay, so question है आपका, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो हमने क्या बोला? क्वेश्चन पूछ रहा है पहले तो मुझसे कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कोई सिनेरियो हो सके. तो लेट्स अंडरस्टैंड 200 का रूट क्या होगा. 200 का रूट निकालने के लिए अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड 100, 50, 2, 5, 5. इसका फैक्टर क्या होगा? कुछ भी नहीं. यू कैन नॉट कैलकुलेट वन पर्टिकुलर रियल रूट ऑफ 200, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ रियल नंबर. तो अगर आपका नंबर रियल नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उसकी लेंथ का या उसकी ब्रेड्थ का आपका कोई भी रियल एस्टेट एग्जिस्ट करे. सो द क्वेश्चन जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो. It is not possible to have this scenario as a question जहां पर आपका area 800 हो and length is twice of the breadth. This is not possible, right? I hope this was okay and understandable. We will move on to the next question. So आपका next question बोलता है, is it possible to design a rectangular park with perimeter 80 meters and area 400 meters? If so, find the length and breadth. Okay, again, so same thing. आपका एक rectangular park है. So आपका एक rectangular park है जिसका आपका perimeter 80 meters का है. Perimeter is 80 meters. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l plus b is equals to 80, right? So l plus b is equal to 40, so l is equals to 40 minus b. नाउ मैंने l की वैल्यू को b के टर्म्स में यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया. क्यों? मैं बताती हूँ नेक्स्ट वाले पोर्शन में. द नेक्स्ट पोर्शन सेज द एरिया इज 400 meters. So if the area is 400 meters, then एरिया का फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी इज इक्वल्स टू 400. सो L आपका है 40 माइनस बी. सो B इंटू 40 माइनस बी इज इक्वल्स टू 400. सो 40b माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ हम इसको अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा 40b प्लस 400 is equals to 0. This is your question. Now it says, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? Now possibility पे question हो रहा है. Let's understand यहाँ पर आपका constants क्या हैं. Again, A है आपका 1, B है आपका -40 और C है आपका 400. Correct? फिर से हम इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन. अब
क्योंकि यहाँ पर हम इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या है b, तो b को ही रखेंगे यहाँ पे b इज इक्वल्स टू माइनस, एक्चुअल क्वेश्चन में क्योंकि हम a b c से ही इसको रेफर कर रहे हैं तो ये भी b है, तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग लेट्स मेक दिस x y एंड z, जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन हम इसको बना देते हैं ऐसा, तो दिस विल बिकम b, तो माइनस y प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 4a होता है आपका x एंड c होता है आपका z, राइट, एंड 2a मतलब 2x, करेक्ट। ना यहाँ पर हो जाएगा आपका b इज इक्वल्स टू माइनस y मतलब माइनस 40 प्लस माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हम करेंगे तो दैट बिकम्स 40 इंटू 40 एंड माइनस माइनस प्लस, सो 160, 40 इंटू 40, राइट, 1600 माइनस 4 into x into z, 4 4s are 1600, 2x मतलब 2, so b is equals to 40 plus minus 0 divided by 2, b is equals to 40, सिंगल वैल्यू आई है आपकी, दिस इज द कंडीशन जहां पर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज टर्निंग इनटू 0, सो जहां पर भी आपका b स्क्वायर माइनस 4ac टर्न्स इनटू 0, वहां पर क्या पढ़ा था हमने, वहां पर हमने पढ़ा था कि आपके पास दो रूट्स आएंगे, दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर सेम चीज हुई है, यहाँ पर आपका प्लस माइनस किसी भी सिनेरियो में आपके पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 40 plus 0 divided by 2, so basically your answer will be 20, right, so your breadth of the rectangular part is 20, and since अगर हमें लेंथ भी निकालना है तो पेरीमीटर हमने डिफाइन किया था एज 80, तो L is equals to 40 minus B, so L is equals to 40 minus 20 is equals to 20, तो लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20, it's basically a not a rectangular square but rather a sorry, it's not a rectangular part but rather a square sort of a part जहां पे आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, right? So is it possible, the question is is it possible to design a rectangular park of the perimeter 80 meter and area 400 meter? The answer is yes, but it's not exactly a rectangle, it's a square because your length or breadth आपका same आ रहा है, right? Okay, so this was the last question of this exercise 4.3. मैं एक और क्वेश्चन आपको ले लेती हूँ from any of the example questions that are already there, ठीक है, सो दैट कि हमारे पास एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस मैं सेशन में आपके लिए सॉल्व कर दूं, so दैट रेफरेंस लेना आपको इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपका एक्सरसाइज 4.3 से ही क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट जो है मैं वो उठाती हूँ। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सो यहाँ पे कुछ नहीं बताया है हमें कि रियल है नहीं है क्या है, it just says that 2x square minus 3x plus 5 is equals to 0, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर हाँ तो फाइंड देम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है -3, c क्या है 5, क्वेश्चन में रखेंगे तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a, so x becomes -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a, so 2 into 2 directly 4, right? So x is equals to 3 plus minus 9 minus 4 2s are 8, 8 5s are 40, right? Now this is a unrealistic scenario जहां पर √31 की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, it's not a real number. So जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन says find the nature of the roots of the following quadratic equation, if the real roots exist find them.
सो यहाँ इस केस में क्या है, इस केस में जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो काफी अनरियल होगी, व्हिच मींस दिस क्वेश्चन समवेयर फॉल्स इन द सेकंड थंब रूल, जहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, राइट। -31 का फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट पॉसिबल ही नहीं है, तो नंबर रियल होगा ही नहीं, सो द आंसर इज नो, राइट। So these are all the questions that were available in your exercise that were to be solved. I think इसके beyond और कोई questions नहीं है to solve for quadratic equations. So इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. This is the last part of the video. I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो. Like I have mentioned in my previous videos as well, please engage with the video. The agenda of this channel is to basically increase the engagement between the teacher and the students, whoever is following me, whoever is trying to learn from my videos. मेरी कोशिश ये है कि आपको मेरे वीडियो समझ में आए और आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले. That's it. Thank you so much for joining Learning with Kalpavruksha.